दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। India Israel Inc. Pact on Defense Cooperation. India and Israel Tuesday signed a pact on defense cooperation that seeks to provide a unified vision and policy direction to deepen the already strong ties between the two countries, the Ministry of Defense said in a statement. The MOU was signed during the 17th meeting of Joint Working Group on Defense Cooperation, co-chaired by Defense Secretary Rajesh Kumar Singh and Director General of Israeli Ministry of Defense, Major General Amir Baram in Tel Aviv, the statement said. The statement noted that a wide range of areas for cooperation had been identified in the MOU that will benefit both the countries, which include strategic dialogue of mutual interest, training, defense industrial cooperation and capabilities, including science and technology, research and development and technological innovation, artificial intelligence and cybersecurity cooperation. It further added that the JWG reviewed the ongoing defense cooperation initiatives and agreed that both nations have benefited from each other's strengths. The two sides discussed the potential areas of future collaboration in the field of technology as well as enhancing operational capabilities. ये पहली बार आपने कब सुना था? आगे की 2-3 स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोलेंगे मेजर साहब ये तो ठीक है जो आप बोल रहे हैं, ये इतनी सारी इंग्लिश आपने पढ़ दी, लेकिन ये सुना सुनाया ऐसा लग रहा है, ये कुछ कहीं सुना है, ये वो कहां सुना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पूरा एक गेम चल रहा है, ये पूरा एक प्लान के तहत चल रहा है। वो क्या गेम है मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में शक है कि ये बातें आपने पहले कहीं सुनी हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपने कहां सुनी है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया इजराइल टाइज आर डिफाइंड बाय ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। डॉक्टर एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है इन द बैकड्रॉप ऑफ द ग्रोइंग कंसर्न ओवर फ्रेजाइल सीजफायर इन गाजा स्ट्रिप, इजराइल्स फॉरेन मिनिस्टर गिडियन सार visited India and held talks with the external affairs minister S Jaishankar and national security advisor Ajit Doval. Starting the conversation at Hyderabad House, Mr. Jaishankar said India-Israel relationship is marked by high degree of trust, reliability, and said India-Israel counter-terror cooperation is essential. After the meeting with Mr. Doval, Mr. Saar said that two sides discussed plans to confront the mutual threat of terror. India and Israel have a strategic partnership, and particularly in our case, that term has a real meaning. We have stood together in testing times, and now we have created a relationship with a high degree of trust and reliability. बार बार ये चीज बोलना, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। दोस्तों, भारत ने यूएस के साथ डील तो साइन कर ली, लेकिन बार बार ये जो देखिए ये जो वर्ड्स है ना, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, ये बार बार इसको मेंशन करना, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। He described India-Israel cooperation on the counter-terror front as essential and said the two sides should work for ensuring a global approach of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. Acha, we discussed ways to cooperate and confront our common challenges, especially the mutual threat of terror. We are building a long-term strategic partnership between Israel and India. दोस्तों, आपको एक बात पता है, आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ था, राइट? और उन्होंने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस वो उन्होंने भारत के खिलाफ। अब जब इजराइल बीच में आया, क्या आपको ऐसा लग रहा है, आप सोचिएगा खुद, एंड आई वांट यू टू राइट इन द कमेंट्स, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इज एक्चुअली ऑन द साइड ऑफ इजराइल? पाकिस्तान फौजी भेज रहा है गाजा। आप ये देखिए ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है। इजराइल इंडिया के साथ डील साइन कर रहा है, इंडिया और यूएस के बीच में डील साइन हो गई है, ये सब कुछ हो गया है, एक डिफेंस फ्रेमवर्क हो गया है, और वहां पे पाकिस्तानियों ने मुंह खोल के पैसे मांग लिए कि, और बोल रहे हैं खुलेआम, अपने लोगों को मानसिक तौर पे पाकिस्तानी तैयार कर रहे हैं, अपने लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में डाल के, सोशल मीडिया में डाल के कि देखो हमारा सबसे बड़ा काम है हमास को डिसआर्म करना। हमास वो टेरर ग्रुप है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। आज तक ये कह रहे थे कि फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं पाकिस्तानी, अब ये इजराइल के खेमे में है क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है। इसलिए मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है। ये देखिए, The Ministry of External Affairs said in a statement that the two foreign ministers discussed wide-ranging agenda including political, security, agriculture, trade and investment, defense and people-to-people ties, as well as critical emerging technology, semiconductor, cyber security and AI. ये तो इन्होंने जो डिस्कस करा वो है, ये बहुत जरूरी है। NDTV exclusive, Israel calls India a global superpower, says ties stronger than ever. Israel's foreign minister Gideon Saar described India as a global superpower and said that relations between the two democracies are stronger than ever, spanning from defense and innovation to counterterrorism and trade. In an exclusive interview with NDTV, Saar said, "We are improving consistently. We are thankful for India's friendship
और इन्होंने ये भी बोला है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन द October 7th 2023 टेरर अटैक बाय हमास दैट ट्रिगर्ड द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, SAR expressed deep gratitude for India's swift condemnation. We will not forget the fact that Prime Minister Narendra Modi was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu on that awful day. India stood by us and we will remember that. देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ये जो हमास के खिलाफ ऑपरेशन है ना, अभी इसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, लेकिन इजराइल को डिप्लोमेटिक डैमेज हुआ है क्योंकि बाकी देशों ने मिलकर दे गैंग्ड अप अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका हैज बीन अ गुड पार्टनर, बट अमेरिका इज नॉट अ पार्टनर जिसको कह सकते हैं ना कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप होती है, वैसी अमेरिका के साथ नहीं है. दे टेंड टू ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ये ऐसे ही करते रहते हैं अमेरिकन, राइट. यहां पे इजराइल दोस्त ढूंढ रहा है. इजराइल इज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स एंड इजराइल हैज बीन वेरी फ्रेंडली टू इंडिया. मैं आपको ये बात बता दूं, 1971 की लड़ाई में भी इजराइल की मदद थी. कारगिल में जो हमने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप करे थे पाकिस्तानियों के ऊपर, दैट टेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय इजराइल. जब हमने बालाकोट करा था तो स्पाइस 2000 जो बॉम्ब्स थे, दोज आर इजरायली बॉम्ब्स. काफी कुछ टेक्नोलॉजी जो हमारी डिफेंस फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, दैट इज इजरायली टेक्नोलॉजी. इजराइल हैज ऑलवेज हेल्प्ड इंडिया एंड इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड बाय इजराइल. उस चीज को बताने. अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें. अगर आप ये देखें दोस्तों, बीच में मैं एक पार्टीशन बना देता हूं कि आपको क्लैरिटी हो जाए. इंडिया इजराइल साइन एमओयू टू डीपन डिफेंस कोऑपरेशन, ये 4 नवंबर को हुआ है. इंडिया यूएस इंक न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क फॉर 10 years एम टू डीपन कोऑपरेशन इन ऑल डोमेन्स, ये 1 नवंबर को हुआ है. यानी कि 4 दिन के अंदर अंदर 2 बड़ी डील भारत ने साइन करी है. 2 बड़ी डील, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिफाइड फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी डायरेक्शन, ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि यूनिफाइड फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी डायरेक्शन, ये आप वर्ड याद कर लीजिए, यूनिफाइड फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी डायरेक्शन. और अब मैं आपको बताना चाहता हूं यूनिफाइड विजन एंड पॉलिसी डायरेक्शन. ठीक है भाई साहब, ये इजराइल के साथ डील है, ये यूएस के साथ डील है. अब इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, ट्रेनिंग, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, राइट, इंक्लूडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. तो यहां पे इंक्लूडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी, लैंड, सी एंड एयर के बारे में इन्होंने बात करी है. एंड फैसिलिटेट को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन एंड शेयरिंग ऑफ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज. तो ये जो है इंक्लूडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, इसमें ये आ गया. ठीक है जी. ड्यूरिंग द मीटिंग बोथ साइड्स रिव्यूड ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स एंड एक्नॉलेज दैट इंडिया एंड इजराइल हैव म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम देयर कोऑपरेशन. यहां पे ये कह रहे हैं, ऑफिशियल्स टोल्ड टीओआई दैट द इंटेंट इज टू रिकैलिब्रेट द पार्टनरशिप इन लाइन विद अ रिन्यूड कंसेंसस टू इफेक्टिवली एड्रेस द इमर्जिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज इन द रीजन, इंक्लूडिंग इंपेरेटिव्स फॉर डेटरेंस, स्टेबिलिटी एंड सेफगार्ड अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. तो भाई ये हो गया चाइना का मैटर. ठीक है. यहां पे अगर आप देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा इजराइल का है. During the meeting, both sides reviewed ongoing initiatives and acknowledging that India and Israel have mutually benefited from their cooperation. The delegations discussed potential areas for future collaboration, reaffirmed their joint commitment to combat terrorism. ये काउंटर टेररिज्म का मामला है पूरा का पूरा. सो इंडिया 2 लेवल पे खेल रहा है दोस्तों, इजराइल के साथ, क्योंकि देखिए इजराइल भी टेररिज्म का विक्टिम है, भारत भी टेररिज्म का विक्टिम है. इजराइल जो टेररिज्म आ रही है वो ईरान स्पॉन्सर्ड है. भारत में जो टेररिज्म आ रही है वो टोटली एंड टोटली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है. सो देयर आर लेसन्स दैट द इजरायलीज कैन लर्न फ्रॉम अस, देयर आर लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द इजरायलीज. और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि टेररिज्म क्या होती है, कंट्री की इकोनॉमी को स्लो डाउन करती है, और ये काफी टाइम से चलती चली आ रही है. इनका तो इजरायलीज हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डे 1. हमारा थोड़ा लेट शुरू हुआ, हमारा 70s 80s में शुरू हुआ मामला. इनका तो डे 1 से चल रहा है इजरायलीज का. जब से ये मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल गठित हुआ है, बना है, यूएन ने बोला कि मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल बनेगा. इजराइल तो वैसे 3-4 हजार साल पुराना है, लेकिन मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल बनेगा, तब से इनके जीवन में कलेश है. तो ये लड़ते चले आ रहे हैं. तो अब ये आप देखिएगा, काफी चीज आपको नहीं लग रहा कि यूएस और इजराइल दोनों के साथ जो भारत ने डील करी उसमें कॉमन वर्ड्स हैं, काफी कॉमनैलिटीज हैं. और मैं आपको
दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको बताता हूं कि अगली स्लाइड में जाता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का जो डिफेंस का डायरेक्शन है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और आपको 2026 में बहुत कुछ पता लग जाएगा, बहुत कुछ पता लग जाएगा आपको कि जो हमारी वेपन्स की प्रोफाइल है, जो हमारा पूरा मामला है कि हम किस तरीके से वेपन्स खरीदेंगे, किस तरीके से उसकी डिप्लॉयमेंट होगी, ऑल दिस इज चेंजिंग। मैंने शुरू में पाकिस्तान का नाम लिया था ना, मैंने इसलिए नाम लिया था कि अमेरिका हैज ऑल्सो रियलाइज्ड दैट पाकिस्तान, एंड पता नहीं क्यों अमेरिकन को शक है, चाइनीज को कोई शक नहीं है, चाइनीज आर वेरी क्लियर, अमेरिकन आर अ लिटिल बिट डॉजी। वो पहले शुरू में कोई भी प्रेसिडेंट आता है, शुरू में पाकिस्तान के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत होती है उसकी, 6-8 महीने 10 महीने 1 साल बड़ा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत होगी, फिर पाकिस्तान उसको धोखा देगा, फिर वो प्रेसिडेंट सल्क करेगा, फिर पाकिस्तान की चूड़ियां कसेगा वो, फिर दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, फिर वो मोहब्बत दिखाएगा, ये सारा का सारा चलता रहता है मामला। चाइना इज एब्सोल्युटली क्लियर कि किसके साथ कैसे डील करना है। यहां पे आप देखेंगे भारत हथियार खरीदेगा 2026 में, इजराइल के साथ पार्टनरशिप होगी, खासतौर से टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में इजराइल के साथ पार्टनरशिप होगी, कुछ जैसे कि बराक मिसाइल है, ठीक है, जो बराक मिसाइल राइजिंग लायन में इस्तेमाल हुई थी वही बराक मिसाइल आपकी इस्तेमाल हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं आपको पॉइंट्स ऑफ कॉमनैलिटी बता रहा हूं, एंड दैट इज अ जॉइंट वेंचर इन इंडिया, इट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इजरायली टेक्नोलॉजी बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इट्स अ जॉइंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट इज बीइंग डन बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। ऐसे कई सारी चीजें हैं, हेरॉन ड्रोन्स हैं, कई सारी चीजें हैं जो इजराइल इंडिया की पार्टनरशिप से बन रही हैं, एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम शुरू हो रहा है। और कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत 200 अरब से ज्यादा के हथियार अगले 10 साल में लेने जा रहा है, 200 अरब, एंड एवरीबडी वांट्स a piece of that market. Israelis are already there in India, the Americans are already there in India. अब इंडिया को यह काम करना है कि धीरे 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 जो अपनी वेपन्स की प्रोफाइल है किस तरीके से इसको डाइवर्सिफाई करवाना है, सारा खेल उस चीज का है।